Good morning, everyone. So good morning, everyone. As through the actually technical fault आया, so problem आया उसमें, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ. Sorry for that. Now let's start the session. And session is profit and loss. Everyone is aware about profit and loss, at least basics of profit and loss. Yes or no? Yes. Wait a minute, बेटा. Yes, guys. So everyone knows profit is equal to what? Selling price minus cost price. तो देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज, एटलीस्ट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट. इन सभी टर्म्स से आप सब अवेयर है ना. कॉस्ट प्राइस इट मींस एट विच प्राइस प्रोडक्ट इज परचेज्ड. सेलिंग प्राइस जिस पर सेल किया. मार्क प्राइस इट मींस एमआरपी और लिस्टेड प्राइस. प्रॉफिट ऑब्वियसली इज सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तभी प्रॉफिट होगा. एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इट मींस डिफरेंस वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. Loss only when cost price is more than selling price. In this situation, your loss value is cost price minus selling price. And discount, everyone knows discount is what? Discount always given on mark price. So ये तो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. सो टेल मी एवरीवन, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर एप्लीकेबल होता है? ऑन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस? यस. प्रॉफिट एंड लॉस किस पर अप्लाई कर सकते हैं? यस, ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस. बट जैसे ही इस फॉर्मूले में परसेंटेज आ गया, यहां पर परसेंटेज वर्ड यूज किया है. एंड यू नो एवरीवन, परसेंटेज इज द पार्ट आउट ऑफ 100. पार्ट आउट ऑफ 100. So just multiply by 100 to get the profit percent value and loss percent value. Clear everyone? Means profit percent, it means profit upon cost price into 100. Loss percent means loss upon cost price into 100. Clear everyone? Ashvi, Anuj, Jyoti? Yes, sir. Now, some basic questions, like in any question,
Selling price value is given 480 rupees. Profit is given in terms of percentage is 20%. So what is the value of cost price? Yes. अपने एंड पर सॉल्व करिए और बताइए, एटलीस्ट मेरे को ये क्लियर हो जाए कि बेसिक्स में आप कितने कंफर्टेबल हैं. ओके, वन आंसर इज 400. Rest students, your answers. Manjeet, Rishika, Saloni. Or anyone got 384? Yes, Anuj, your answer. For this question, if selling price is given 480, profit is 20%, what is the value of cost price? Any problem to solve this? चलिए डिस्कस करते हैं फिर, अगर कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, देखिए ऑलवेज अपन कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. And each and every value is 100% in itself. So cost price is also is 100% in itself. In the case of profit, and according to question, profit value is 20%. So including 20% profit in this 100% cost price, your selling price will become 120%. And which is given in this question. So 120% value is 480. 120% value is given, it is 480. So easily get 1% value, 480 divided by 120. And to get the cost price, you know, cost price is equal to 100%. So 100%, it means 480 divided by 120 multiply by 100. And 120, 4 times 480. So correct answer is 400. Anuj, clear beta? Yes, sir. Try to solve next question. Loss value is 20%, selling price 320. What is the value of cost price with same concept? Yes, exactly. Again, this time 320 is the selling price, but this selling price including 20% loss, it means this is 80% to get the cost price value multiplied by 100. And again, this value is equal to 400. I think clear, everyone? Yes, sir. Okay, now the next question says cost price is 80% of selling price. Then find profit percent. Cost price is 80% of selling price. Find profit percent. Yes, exactly. It is 25%. Why? आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का डेटा कंपैरिजन में गिवन है. नाउ दिस टाइम because cost price is 80% of selling price, so compare with selling price, take this value as 100. Why 100? Because you know, everyone, the percentage is the part out of 100. So with respect to this 100, your cost price is 80 rupees. 80% of 100, it means 80 rupees. And your profit value is equal to 20. In this position, profit is 20 out of cost price. It means 80 to get percentage value multiply by 100. So this is 1 by 4.
and 1/4 out of 100, it means this one is 25%. I think clear everyone? सर एक और बार समझा देंगे क्या? बेटा कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया, आपको वैल्यूज गिवन होती, लाइक मैं ये कहता कि सपोज योर सेलिंग प्राइस वैल्यू इज 50 एंड कॉस्ट प्राइस वैल्यू इज 40. सपोज अगर आपको ये डेटा गिवन होता, इन दिस पोजीशन योर प्रॉफिट वैल्यू इज 10 एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट किस पर एप्लीकेबल होगा, कॉस्ट प्राइस पर. सो आउट ऑफ 40 टू गेट परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. आप इसको सॉल्व करते तब भी रिजल्ट आपको 25% मिलता. अब इस क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन गिवन है परसेंटेज के भी आप पर. लाइक आपसे क्वेश्चन कहेगा कि कॉस्ट प्राइस इज 90% ऑफ सेलिंग प्राइस. So in this position comparison selling price से है, so take this value as 100 and cost price is 90%, it means obviously 90 rupees. In this position your profit value is 10, but according to statement it is 80% of selling price. So if selling price is 100, so 80% of 100 is obviously 80. So cost price और selling price का data तो आप with respect to 100 easily judge कर सकते थे, yes or no? Yes sir. So in this position your profit value is 20. So what is profit percent? Profit percent means profit with respect to cost price, and to get percent value multiply by 100. So profit value is 20 किस पर बेटा, cost price पर, which is equal to 80. To get percent value multiply by 100. And finally आपने 1/4 into 100 solve किया, which is equal to 25%. Otherwise आप जानते हैं अगर 1/4 का वैल्यू 25% होता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे without any calculation. Clear everyone? Yes, sir. Okay. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, भी बेसिक क्वेश्चंस पर ही है. लास्ट क्वेश्चन में कंपैरिजन परसेंटेज के भी आप पर दिया था, अभी डायरेक्टली रेशियो में गिवन है. सो इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 8 and 12, so the percentage of profit is, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है 8 and 12. इट मीन्स आप कॉस्ट प्राइस को एज ए 8 एंड सेलिंग प्राइस को एज ए 12 कंसीडर करेंगे. ऑब्वियसली योर प्रॉफिट वैल्यू इज 4. So this 4 rupee profit out of cost price, which is 8, to get percentage value multiply by 100, and 4 by 8 it means 1/2, and 1/2 out of 100 definitely it is 50%. Yes Anuj, clear beta? Yes, sir. Now this time language is important. A shopkeeper sells his article at 16.67% profit on selling price. Find his actual profit percent. Profit is given, but this profit is on selling price. Actual profit percent, what is the meaning of actual profit percent? क्योंकि profit obviously cost price पर होता है, ये by default cost price पर consider करना था, but by mistake ये selling price पर consider किया, जिसकी वजह से result question में 16.67 given है. It means ये correct profit की value नहीं given है, तभी उसने बोला है in this question actual profit percent का value बताइए. ओके, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको एटलीस्ट देखिए कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशंस पता होने चाहिए कि इनका परसेंट और फ्रैक्शन वैल्यू का आपस में क्या रिलेशन है. लाइक 16.67% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? Sir, 1/6. एग्जैक्टली देखिए मैं एक बार नोट कर देता हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आपको बार बार यूज होनी है, लाइक 20%. एवरीवन नोज 20% इज 1/5. एंड हाउ टू गेट दिस वैल्यू बेटा, परसेंट से फ्रैक्शन में आने के लिए आप डिवाइड बाय 100 करते हैं. सो 20% को जैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सो एक्चुअली दिस इज 20/100 विच इज इक्वल टू 1/5. सेम वे में अगर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर यूज हो रहा है, इट मीन्स या अपन फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं,
देखिए 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज 33.33%, 1/4 इज 25%, 1/5 डिस्कस कर चुके, दिस वन इज 20%, 1/6 इज 16.67%, जो कि अभी क्वेश्चन में डेटा गिवन है, 1/7 is 14.28%, 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, 1/10 everyone knows this is 10%, but 1/11 is 9.09% and 1/12 is 8.33%. At least इतना डेटा तो आपके माइंड में होना चाहिए। बस इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन पर आते हैं। राठी जी का आंसर 20% है फॉर दिस क्वेश्चन। रेस्ट स्टूडेंट्स, यस सलोनी, मंजीत, एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Problem. ओके बेटा, देखिए actually data is given 16.67%, which is in terms of fraction is 1/6. अब अगर आप फ्रैक्शन को डील ना करके आप फ्रैक्शन परसेंटेज में ना डील करके आप फ्रैक्शन में डील करते हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1/6? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, shopkeeper sell his article at this percent profit, it means 1/6 profit on selling price. It means 6 rupees यहां पर selling price को represent कर रहा है और 1 rupee profit को represent कर रहा है। yes or no? Yes. Like अगर वो कहता 20% profit on selling price, it means 1/5, 20% it means 1/5 in this position, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में है तो डेफिनेटली दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस वन इज प्रॉफिट। बट अगर इन जनरल वो कहता है कि 20% प्रॉफिट है, तो आप इन दैट पोजीशन 1/5 में 5 को कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर होता है, बट बाय मिस्टेक यहां पर सेलिंग प्राइस पर लिया है, तो इट मींस इन दिस पोजीशन ये 6 आपका सेलिंग प्राइस कंसीडर होगा। अनुज, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. So if your selling price value is 6 rupees, profit is 1 rupee, so obviously cost price आप इजीली निकाल सकते हैं। इन द केस ऑफ प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मींस 6 minus 1, so cost price value is 5 rupees. So ये जो 1 rupee प्रॉफिट था अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन वैल्यू, जो बाय मिस्टेक अपन ने सेलिंग प्राइस पर कंसीडर किया था, एक्चुअली ये कॉस्ट प्राइस पर होना था, इट मींस 5 पर होना था। एंड इफ यू नो 1/5 इज 20%, सो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं इट इज 20%। अदरवाइज टू गेट द परसेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, नाउ योर आंसर इज 20%। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Manjeet, got it? Yes, sir. सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज किया है एंड लैंग्वेज में बहुत माइनर चेंज है। इन दिस पोजीशन 20% loss given on selling price, an actual loss percent is required. Okay. Yes, rest students, your answers. Ashwi, Anuj. Sir, is the answer 20%? चेक करते हैं अभी फिलहाल मिस्टर राठी एंड मंजीत के अकॉर्डिंग 33.33%। एक्चुअली क्वेश्चन कहता है Yes, sir. 1/3.
wait a minute. 25% loss, which is 1 by 4. And in this position, this 4 rupee as a selling price and 1 is loss value. So if your selling price is 4, loss value is 1 rupee, definitely this time your cost price value is 5 rupee. आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन के फ्लो में उसको 33.33 कंसीडर कर लिया, बट द लॉस वैल्यू इज 1 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 5. सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली 20%. बेटा लॉस के केस में सेलिंग प्राइस में ऐड करने पर कॉस्ट प्राइस मिलेगा ना, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट थोड़ी करेंगे. मंजीत गॉट इट? Yes, sir. Okay. The question says, a shopkeeper marks his goods 20% above the cost price and give 5% discount. Find profit percentage. So, you know everyone, mark price तो एटलीस्ट ऑलवेज कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ज्यादा ही होता है. कितना ज्यादा है वो आपको परसेंटेज में गिवन है. एंड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस. उस मार्क प्राइस के ऊपर 5% का डिस्काउंट देने पर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? So actually question based on basics of percentage. Okay. Yes, absolutely right. So चूंकि क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है. So initially, if you take cost price value as a 100, why 100? Because percentage is the part out of 100. So 100 के respect में easily आप data compare कर पाते हैं. Means in this position your MRP is 20% more. It means your mark price is 120. Out of this 120 आपको 5% का discount मिल रहा है. So 10% of this 120 is 12 rupees. It means 5%, it means 6 rupees. So after getting the 6 rupee discount, your selling price will become 114. नाउ अब कंपैरिजन इजी हो गया और ये क्लियर हो गया कि आपने 100 लिया तो क्या बेनिफिट हुआ. 100 के रिस्पेक्ट में 114 सेलिंग प्राइस आ रहा है. इट मींस 14 रुपी प्रॉफिट है. आउट ऑफ 100 है तो कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है. आंसर इज 14%. अब देखिए सपोज अगर यही डेटा अपन 200 कंसीडर करते कॉस्ट प्राइस का, आंसर इससे भी आना है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इंक्रीज कर जाएगा. इन दिस पोजिशन आप 20% एक्सीड करेंगे. सो चूंकि ये डेटा 100 नहीं है तो आपको 20% कंसीडर करना पड़ेगा. 10% इज 20, 20% इट मीन्स 40. सो योर MRP इज इक्वल टू 240 एंड 5% डिस्काउंट किस पर हुआ? ऑब्वियसली 240 पर हुआ. 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 24, सो 5% इट मीन्स 12 रुपीज का डिस्काउंट हुआ. और 12 रुपीज का डिस्काउंट हुआ, इट मीन्स आफ्टर गेटिंग 12 रुपी डिस्काउंट योर सेलिंग प्राइस विल बिकम 228. सो अब आपके पास 28 रुपीज का प्रॉफिट है. अगेन 28 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 200. टू गेट परसेंट वैल्यू एट लास्ट आपको अगेन 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है. सो इट मीन्स 28/2. देखिए आंसर आपका अगेन 14% आ रहा है. अब डेटा कोई भी कंसीडर करेंगे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर आप 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एंड अगर आप वेट अ मिनट, बहुत दिक्कत दे रहा है. देखिए इफ यू अवेयर with this formula x plus y plus xy upon 100, formula for two successive changes in with respect to percentage. x फर्स्ट चेंज है, y सेकेंड चेंज है. इस फॉर्मूले के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. लाइक क्वेश्चन में बोला कि 20% पहले वैल्यू को इंक्रीज किया, देन 5% डिस्काउंट दिया, इट मींस डिक्रीज किया. सो एक्चुअली ये फॉर्मूला विद प्लस माइनस साइन था ना, प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाय 100. अभी इस फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई करिए, देखिए क्या आंसर आता है.
क्या ढूंढ रहे हो? Yes, Sir, guys. 14. Sir, 14 here. Exactly. So x first change is, y second change है. Plus minus due to increase and decrease चलेगा. So initially 20% increase किया, then 5% decrease किया. Again plus 20 minus 5 divide by 100. So this part gives plus 15 and this is minus 1. So finally your answer is 14%. Through this formula, if your result comes in positive sign, so it is profit. Otherwise, अगर negative आता है, तो it represents loss. Okay, everyone? Sir, Yes, sir. if we Now your next question says, two successive discounts of 40% and 20% is equal to what percentage of single discount? जनरली ऑनलाइन सेल्स के अंदर आपको इस टाइप के डिस्काउंट शो होते हैं ना. सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज में एक्स का वैल्यू क्या होगा? ओके, so one answer is 52. So everyone got 52, Saloni? Yes, sir. Okay. Your answer is 52 or No, sir, 28%. 28? देखिए, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस पर एप्लीकेबल होगा. सो टेक दिस वैल्यू एज ए 100. अगेन 100 क्यों कंसीडर कर रहे हैं? बिकॉज इजीली आप परसेंटेज में कंपेयर कर पाएंगे. सो फर्स्ट डिस्काउंट इज 40%. लाइक आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, एमआरपी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज 100 रुपीज. आफ्टर गेटिंग दिस 40% डिस्काउंट, अभी उस प्रोडक्ट का कॉस्ट 60 हो गया. सलोनी, यस और नो? Yes, sir. एंड अगेन आपको एक और डिस्काउंट मिल रहा है 20%. सो बेटा ये 20% किस पर एप्लीकेबल होगा? So 60. 60 पर. So 10% of this value is 6. So 20% it means 12 rupees का डिस्काउंट और मिला. So अब प्रोडक्ट की कॉस्ट 60 थी और आफ्टर गेटिंग दिस 12 रुपीज एडिशनल डिस्काउंट, कॉस्ट विल बिकम 48. सो 100 रुपीज का प्रोडक्ट अब आपको 48 में मिल रहा है. इट मीन्स डिस्काउंट वैल्यू इज 52 रुपीज एंड आउट ऑफ 100, सो नो नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज, इट इज 52%. क्लियर बेटा? Yes, sir. अदरवाइज देखिए, थ्रू दिस फॉर्मूला जो अभी डिस्कस किया था, आप इसमें भी रिजल्ट निकाल सकते थे. बट एक्चुअली ये डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो डिस्काउंट मीन्स वैल्यू को डिक्रीज किया. सो ऑल वैल्यूज नेगेटिव कंसीडर करेंगे. -40 -20 प्लस ऑफ -40 -20 डिवाइडेड बाय 100. सो दिस इज -60 एंड माइनस माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो गया. 0 0 0 0 कैंसल, +8.
विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 52%, और माइनस केवल ये शो कर रहा है कि ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, डिस्काउंट मीन्स वैल्यू डिक्रीज हुई है। ओके, थ्रू दिस फॉर्मूला भी क्लियर है? Yes, sir. एंड अगेन आप डिफरेंट वे में भी फॉर्मूला देख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। इट मीन्स स्पेशली फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स को वन सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। सो योर फॉर्मूला इज दिस। इस फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे तब आप वैल्यूज को नेगेटिव नहीं रखेंगे, फिर पॉजिटिव रखेंगे। सो दिस इज 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, और यहां से आंसर डायरेक्टली 52% आएगा। एक्चुअली इस कंप्लीट वैल्यू में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज माइनस थी ना, तो ये फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस फॉर्मूला इज डेडिकेटेड टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला ये है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज चलेंगे, या फिर कंसेप्चुअल भी चल सकते हैं, वो तो बहुत ईजी है। अगेन अब क्वेश्चन में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो अब देखिए फॉर्मूलों पर इतना डिपेंडेंट मत रहे, कंसेप्ट इतनी इजी है, तो आप थ्रू कंसेप्ट चलें, ज्यादा बेहतर है। So what is the value of single discount percentage? Yes, very good. So your MRP is 100 rupees. First discount value is 10%. After getting this 10% discount, MRP हो गया आपका 90. Reduce, okay. Next discount value is 20%. 20% it means 18 rupees. 20% of 90 is 18. So now this is 72. And your third discount value is 50%. So after getting 50% discount on this 72, just half हो गया value, which is 36. So 100 का product आप 36 में परचेज कर रहे हैं, it means 64 रुपी डिस्काउंट आउट ऑफ 100, it means डायरेक्टली परसेंट वैल्यू आ रहा है, which is 64%. So Anuj, Ashvi, clear बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर सर तो इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लाइक प्रीवियस सम में हमने देखा था टू सक्सेसिव नहीं, डिस्काउंट का फॉर्मूले एक्स देखिए प्लस बहुत वाई सारे हैं, प्लस। बट फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंडेंट इसलिए नहीं रहेंगे यस सर। क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले से पहली चीज तो कई बार चीजें क्रिटिकल हो जाएंगी। लाइक मैं अगर टू डिस्काउंट्स की भी बात करूंगा, उसमें भी क्वेश्चन क्रिटिकल बनाया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप लिमिटेड फॉर्मूलों के ऊपर रहना चाहते हैं, तो लाइक देखिए जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया था ये वाला फॉर्मूला यूज, तो आप दो डिस्काउंट्स को पहले क्लब कर लीजिए और उसका जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ क्लब कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज ऑब्वियसली मेमोरी से गायब हो जाते हैं फॉर्मूले। ये सब फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है, और स्पेशली क्रिटिकल क्वेश्चंस में तो फॉर्मूले अप्लाई होते ही नहीं है, वहां सिर्फ कंसेप्चुअल अप्रोच चलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, लाइक इन दिस क्वेश्चन। अब देखिए अब लैंग्वेज क्या कह रहा है समझिए। इन दिस पोजीशन आपको एमआरपी इज गिवन 1200। अगेन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात करिए, वन डिस्काउंट वैल्यू इज 30 एंड सेकंड वन इज X%। ऑब्वियसली एक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो सेलिंग प्राइस गिवन है, सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए। अब फॉर्मूले को किस तरह से यूटिलाइज करना है अब आपको इस पर सोचना है। इससे बेहतर है आप बेसिक अप्रोच, अपनी जो कंसेप्चुअल अप्रोच है उस पर चले। Anyone got the answer of X, value of X?
ये देखिए, थ्रू कंसेप्चुअल अप्रोच अगर चल रहे हैं आप, तो 1200 रुपीज ये तो डायरेक्टली गिवन है। फर्स्ट 30% का डिस्काउंट गिवन है। 30% ऑफ दिस 1200, इट मीन्स 360 रुपीज। 10% of this data is 120. 30% is 360. After getting 360 rupee discount on MRP 1200, price reduce हो गया, it is 840, and selling price is given 672. So obviously 840 पर 672 पे करना है, it means your discount prices, discount value जो price है वो 168 है, और ये 168 का discount 840 पर अप्लाई हो रहा है। To get percentage value, multiply by 100. 84 2s are 168. It means 20% का next discount है. So the value of X is directly 20%. Clear? No, sir. बेटा किस स्टेप में प्रॉब्लम आया? So second, 840 तक क्लियर था ना? yes, sir. बट 840 ये जो एमआरपी रिड्यूस होके कब रिड्यूस हुआ? जब 30% का आपने एक डिस्काउंट इस पर अप्लाई कर दिया। बट अभी नेक्स्ट डिस्काउंट जो X% मिल रहा है, उसके बाद फाइनली कस्टमर 672 रुपीज पे कर रहा है। इट मीन्स 840 के प्रोडक्ट पर आप 672 पे कर रहे हैं, तो अभी एडिशनल 168 रुपीज का डिस्काउंट और मिल रहा है ना? Yes, sir. और वो किस पर अप्लाई हो रहा है? ऑब्वियसली 840 पर। Hmm. तो सिंपल क्वेश्चन इज दिस डिस्काउंट वैल्यू 168 किस पर? 840 पर कितना परसेंट है? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ क्लियर? Yes, sir. आशवी, अनुज, मंजीत, क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now read the language carefully. Easy question. Shopkeeper gave two successive discounts of 20% and 15% on purchase of an article. If customer pay 1156 for that article, find mark price. Yes, do it fast. Okay, one answer is 1700. Everyone got same? Yes, the correct answer is 1700. Absolutely right. So your initial task to calculate the single discount percent, 20% and 15%. इन्हें सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज में कन्वर्ट किया, सो दिस इज इक्वल टू 32%। एटलीस्ट यहां तक तो सबने कर लिया, यस और नो? Yes, sir. सलोनी गॉट इट? 32% आया। Yes, sir. सो एमआरपी पर आपको फाइनली इन द सिंगल डिस्काउंट 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। इट मीन्स एक्चुअली कस्टमर पे करेगा 68%, एंड दैट 68% ऑफ एमआरपी इज गिवन 1156। इट मीन्स simple calculation बचाया, 1156 multiply with 100 and divided by 68. After solving this, your MRP is equal to 1700 rupees. Is it clear? Yes, Saloni and Anuj, Ashvi,
Yes, sir. Clear. Yes, sir. अब सर यहाँ से बेटा, हाँ बेटा, सर प्रीवियस क्वेश्चन में मैं एक अप्रोच कर रहा था। यस यस सर, आपका ये जो MRP इंटू 68%, ये समझ में आ गया। पर एक अप्रोच मेरा था कि मैं 32% सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लिया था, मतलब टोटल दोनों का। उसके बाद ये था कि एक्स पे अगर हम 32% देते हैं तो वो निकलेगा 1156। तो एक्स अगर, पर, हाँ, एक्स पे अगर हम 32% देते हैं। बेटा एक्स कौन है? एमआरपी। यस। एक्स का 32% अकॉर्डिंग टू यू इज इक्वल टू 1156। नहीं नहीं, एक्स से माइनस करते हैं 32%। हाँ, सो इट तो मीन्स एक्स माइनस 32x बाय 100 यस इज सर। इक्वल टू 1156। हाँ सर, तो यहाँ पे थोड़ा फंस गया था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशंस में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो ये अप्रोच फॉलो करना चाहिए कि थोड़ा सा नहीं दिक्कत हुई? बेटा, आप जो कर रहे हैं एक्चुअली इससे भी तो वही आ रहा है। आप देखिए, इस फाइनली इसको सॉल्व करने पर इट इज 68x बाय 100 ना, यही तो यस आएगा। यस सर। हाँ तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं कि एक्स में पहले 32% इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करूं? एवरीवन नोज 100% टोटल वैल्यू है, 32% सब्ट्रैक्ट हो गया थ्रू डिस्काउंट, सो 68% ही तो रिमेनिंग बचा। ओके सर। हाँ, अब इस क्वेश्चन से थोड़ा लैंग्वेज पर स्पेशली फोकस करिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस में आपके पास और डिफरेंट अप्रोच भी हो सकती हैं सॉल्व करने के लिए। इन द फर्स्ट बेसिक अप्रोच थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, पहले आप ट्राई करिए अपने एंड पर। डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस रिक्वायर्ड है, तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, very good. Everyone got correct answer. It is 110. Very good. So any problem to solve this? Rathi, Ashwi and Manjeet got 110. Yes, Anuj and Saloni. ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें थोड़ा सा। Okay. मंजीत बेटा, आपने क्या स्टेप फॉलो किए? कॉस्ट प्राइस पे है ना, अपन को है ना मिनिमम इसको प्रॉफिट चाहिए, उसको 9.5 रुपीज का उसको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। हम्म मतलब 9.5 रुपीज का प्रॉफिट मतलब चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू, कॉस्ट प्राइस वैल्यू इज 95 एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज आपको 10% प्रॉफिट गिवन है, विच इज इक्वल टू 9.5 रुपीज। इट मीन्स योर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इट इज 104.5। यस। हाँ, पर फिर बाद में उसको 5% का डिस्काउंट भी देना है ना, तो वो भी हम्म ऐड करके ही अपन को चाहिए रहेगा। सो व्हाट?
तो वो इसमें ऐड करेंगे, फिर बाद में सेलिंग प्राइस आएगी, मतलब मार्केट प्राइस आएगी। तो इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि मार्क प्राइस 95% वैल्यू इज इक्वल टू 104.5। यस। यस सर। अनुज, कुछ डाइजेस्ट हुआ? यस सर। देखिए, ये बेसिक अप्रोच है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी इसको अवॉइड करते हैं, अप्रोच क्लियर होना चाहिए बस। सो सलोनी बेटा, क्लियर है ये अप्रोच? Yes, sir. अब थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच पर चलते हैं जिसमें कैलकुलेशन अपना रिड्यूस हो जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा। इफ इन एनी क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज ये दोनों गिवन है, सो आप ऑलवेज फोकस करेंगे ऑन सेलिंग प्राइस। क्यों फोकस करेंगे सेलिंग प्राइस पर, उसका कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। लाइक पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो कॉस्ट प्राइस से ऑलवेज एमआरपी ज्यादा होती है, एमआरपी में डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट को शो करता है। तो ध्यान से समझिएगा कि इन एनी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉफिट एंड डिस्काउंट दोनों की बात करिए, तो डिस्काउंट अप्लाई होता है मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस में डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट किस पर अप्लाई होता है? कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने पर क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. सो मार्क प्राइस पर आपने 5% का डिस्काउंट देना है। इट मीन्स 95%, है ना? 5% डिस्काउंट किस पर? मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट देने के बाद क्या वैल्यू आ गई? सेलिंग प्राइस। इट मीन्स ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट आपको 10% का गिवन है, ये एप्लीकेबल होगा कॉस्ट प्राइस पर। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस का 110%। ऑब्वियसली ये भी सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया, प्रॉफिट ऐड किया, एंड बोथ आर सेलिंग प्राइस। इट मींस बोथ आर इक्वल। यस और नो? यस सर। सो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आपको 95 गिवन है, और केवल कैलकुलेशन करना है। सो 95 95 100 100 कैंसिल, विदाउट एनी कैलकुलेशन योर एमआरपी इज इक्वल टू 110। ओके? मंजीत, गॉट इट? यस सर। इस अप्रोच में आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है कि whenever in any question discount percentage and profit percentage both are given, so always focus on selling price. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, आप इसी पैटर्न पर ट्राई करिए, देखिए इजीली आपको आंसर मिलेगा, बट लैंग्वेज में बहुत माइनर सा चेंज है। इस क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू देकर दूसरा वैल्यू पूछा नहीं है, आपसे कंपैरिजन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, कि मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। बेटा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज योर आंसर इज 140। यस, इट इज 40%। Yes, rest students. Any problem to solve this?
सर नहीं हो रहा सर। Saloni, your answer? नहीं आया। देखिए, आपको 19% का प्रॉफिट गिवन है एंड 15% का डिस्काउंट गिवन है। सो दिस 19% प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर, ऑन कॉस्ट प्राइस, एंड 15% का डिस्काउंट किस पर अप्लाई होगा? मार्क प्राइस पर। इट मीन्स अगर आप सेलिंग प्राइस पर फोकस कर रहे हैं, सो एमआरपी पर आफ्टर गेटिंग 15% डिस्काउंट योर सेलिंग प्राइस इज 85% ऑफ एमआरपी। यस और नो? Yes, sir. अनुज? यस सर। And 19% profit applicable on cost price, it means your selling price is 119% of cost price. Yes or no? Yes, sir. And both are selling price, so equal हो गए। 100 to 100 cancel, 17 5s are 17 7s are, it means easily आपको relation मिलता है in between mark price and cost price, which is 7 and 5. Till this step everything is fine. Yes, sir. Anuj? यस सर। अभी देखिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में एक वैल्यू देकर आपसे दूसरा पूछता तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके यहीं पर सॉल्व कर लेते, बट आपको रिलेशन अब पता चल गया कि इफ योर मार्क प्राइस इज 5 रुपीज, इन दैट पोजीशन योर कॉस्ट प्राइस इज 5 रुपीज। बट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, इट मींस मार्क प्राइस इज 2 रुपी मोर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस विच इज 5, टू गेट परसेंटेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 205, इट मींस 40%। Otherwise, if you know 1 by 5 is 20, so directly आप कह सकते हैं 2 by 5 which is 40. Now clear everyone? यस सर। Ashvi? Yes, sir. Okay. अब तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। Language says cost price of 15 pence is equal to selling price of 12 pence. तो आपको profit percentage calculate करना है। What is the value of profit percent? With the help of this data, cost price of 15 is equal to selling price of 12. Okay. एंड ऑब्वियसली अगर इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ऑप्शंस गिवन होंगे तो दो आंसर तो डेफिनेटली होंगे, वन इज 20 एंड अदर वन इज 25, एंड ऑब्वियसली इनमें से एक राइट है और एक रॉन्ग है। सो राठी एंड Ashvi got 25. Yes, Manjeet, Anuj, Saloni, your answers? Yes, sir. 1 by 4, 25%. 1 by 4, 25. Anuj, your answer? देखिए, आपको डायरेक्टली जब रिलेशन गिवन है तो इजी वे है कि इसे रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। इट मींस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12 on 15. So in this position, your cost price is 12 and selling price is 15. It means 3 rupee profit out of this cost price, which is 12. To get percentage value, this is multiply by 100. And actually, this is 1 by 4. So 1 by 4, it means 25%. Clear, Anuj?
मंजीत सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था या कुछ एक्स्ट्रा? हाँ, ये वाले किया था। दूसरे वाले से भी ट्राई किया था, पर वो थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा था। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस नेक्स्ट वन। अब लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, so do it carefully. Actually, your all data is given in terms of selling price. By selling 33 meter of cloth, a man gains selling price of 11 meter. Find profit percentage. Suppose your options are option number 1 is 33.33%. Option number 2, 66.66%. Option number 3 is 50%. Option number 4 is 200%. So out of these 4 options, which one is right? Okay. Ashwi and Manjeet got 50. Anuj Saloni, your answers? सर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा से इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा है। Last question का concept clear था Anuj? यस सर। So when data is given in terms of selling price and cost price, तो आप easily calculate कर सकते हैं, but in this position everything is given in terms of selling price. तो पहले इसका शॉर्टकट अप्रोच देखते हैं, फिर इसको बेसिक से और समझेंगे. When all data is given in terms of selling price, so जितना सेल किया इसको एज ए सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे. मीन्स योर सेलिंग प्राइस इज 33. प्रॉफिट वैल्यू गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 11 के फॉर्म में. इट मींस प्रॉफिट वैल्यू इज 11. इन दिस पोजीशन योर कॉस्ट प्राइस इज व्हाट? इट इज सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. इट मींस 22. So profit percent value is profit upon cost price. To get percent value, multiply by 100. So it is 50%. So when all data is given in terms of selling price, आप डायरेक्ट इस तरह से डील कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप बेसिक अप्रोच पर चले तो ध्यान से समझिएगा कि जब तक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन नहीं पता, आप प्रॉफिट का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो यू नो वेरी वेल, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. क्वेश्चन कहता है सेल किया है 33 मीटर ऑफ क्लोथ. सो ऑब्वियसली ये जो सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे ये 33 मीटर के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे. और अगर सेल किया है 33 मीटर तो ये सेल बेटा तभी हुआ है जब परचेज हुआ है. सो परचेज का भी क्वांटिटी आपको 33 मीटर कंसीडर करना पड़ेगा. जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होगी आप प्रॉफिट लॉस जज नहीं कर सकते. एंड प्रॉफिट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर. सो प्रॉफिट को रिप्लेस कर सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर से. ये स्टेप क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। इट मीन्स अब इजीली आप कह सकते हैं योर कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 is equal to selling price of 22. It means cost price and selling price relation is 22 and 33. It means 11 profit out of 22, and 11 by 22 out of 100 is 50%, which is in option number 3. I think now clear everyone? Yes, sir. Okay, another simple question.
A person sells an article at a loss of 12%. But if he sell it rupee 40 more, then he loses 7%. Find cost price. Yes, the correct answer is 800. Absolutely right. I think ये question तो mentally solve कर सकते हैं. Manjeet, any problem to solve this? नो सर, एक सेकेंड, हो ही गया ऑलमोस्ट. देखिए जैसे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझते हैं. इनिशियली 12% लॉस गिवन है एंड नेक्स्ट केस में 7% का लॉस गिवन है. सो ये लॉस रिकवर हुआ कितना? 5%. 5%. And this 5% recovery due to 40 rupees more. So this 5% is equal to 40 rupees. So obviously 10% is equal to 80 rupees. And everyone knows cost price is 100% in itself. So this is equal to 800. Simple question tha. Clear everyone? सर ये लास्ट स्टेप एक बार समझा रही हूँ ना, लास्ट बेटा सेकंड. 5% is 40. तो आपको 100% को कैलकुलेट करना है बस. So cost price 5% is 40. So what is the value of cost price? ओके सर. Try to solve this. Same question है. तो 125 अब तक दो लोगों ने रिस्पॉन्स किया है. यस, आश्वी, अनुज, सलोनी. सर एक मिनट करीब. क्या बेटा अनुज? सर एक मिनट कर ही रहे हैं आंसर. ठीक है. सर मेरा तो 208 आ रहा है. 208 आ रहा है. इट मीन्स आपने रीडिंग में कुछ मिस्टेक करी है. एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है initially 5% loss, then 20% profit,
बेटा कितना रिकवर हुआ? यस अनुज, 15%। यही मिस्टेक करी है एक्चुअली। अभी 25% रिकवर हुआ ना। फ्रॉम 5% लॉस टू 20% प्रॉफिट, इट मीन्स टोटल रिकवरी 25% की हुई। यस और नो? यस सर, हाँ। And this is equal to 31.25, and your cost price is 100% in itself. It means 4 times value required है. So 31.25 multiply with 4, which is equal to 125 rupees. Ashwi, Anuj, Saloni, clear now? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. Now your language says a shopkeeper sold his goods at cost price and uses a weight of 800 grams instead of 1 kg. Find profit percent. Very simple question. Okay, so 25%. Anyone got 20? यस सर। किसका 20 आया बेटा? सर मेरा। बेटा देखिए, 1 kg इट मीन्स 1000 ग्राम। इसके रिस्पेक्ट में सेल किया 800 ग्राम्स। सो एक्चुअली प्रॉफिट तो 200 ग्राम का हो रहा है, ऑब्वियसली ये तो सभी को क्लियर है। बट दिस 200 grams प्रॉफिट आउट ऑफ 800 ग्राम, व्हाई? इतना क्वांटिटी तो सेल किया ही नहीं ना। सेल कितना किया है? 800 ग्राम सेल किया है, और कॉस्ट चार्ज किया है 1000 ग्राम का। मीन्स ये 200 का प्रॉफिट है, बट कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है मेरा केवल 800 ग्राम का। So to get the profit value in terms of percentage, multiply by 100, 1 by 4, it means 25%. Now clear, Anuj? यस सर, एब्सोल्युटली। Again, as it is same question. It's 11.11%. So it is 100 upon 900 multiply with 100. So actually 1 by 9, if you know 1 by 9 in terms of percentage is 11.11, so directly आप आंसर कर सकते हैं, otherwise 100 by 9 आप सॉल्व करेंगे. In both cases, your answer is 11.11. Clear, everyone? Yes, sir. Yes. अब क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बट लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सो डू इट केयरफुली, बिकॉज अभी आपको 6% का लॉस भी मेंटेन करना है विद सेम लैंग्वेज. इट इज इंपॉर्टेंट टू हाउ टू मेंटेन द लॉस.
Okay, so one answer is 4.44. Manjeet, your answer? Trying to solve. Anuj, how to get this 5.11 beta? सर पहले तो 11.11% निकाल लिया, तो आई थिंक थोड़ा रॉन्ग कर दिया, डायरेक्ट 6% माइनस कर दिया, तो फिर वो 5.11%। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली तो इस तरह सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब समझिएगा डिटेल कंसेप्ट जो अपन ने शॉर्ट में डिस्कस कर दिया था, लाइक इन दिस क्वेश्चन। इसको पहले डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली ये आप क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डील कर रहे थे, इसलिए शायद आपको कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ। सो लाइक 1 kg कॉस्ट इज सपोज 100 रुपीज। 100 के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन इजी है, सो आप ठीक से समझ पाएंगे। सो कॉस्ट प्राइस पर सेल किया अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज इन दिस क्वेश्चन, इट मीन्स ऑब्वियसली कस्टमर से 100 रुपीज चार्ज करता है। 1 kg अगर वो 100 रुपीज में परचेज करके ला रहा है, कस्टमर को कॉस्ट प्राइस पर सेल कर रहा है, इट मीन्स 100 रुपीज पर सेल कर रहा है। और यूज करता है 800 ग्राम वेट, इट मीन्स उसका जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो ऑब्वियसली 800 ग्राम का इन्वॉल्व हो रहा है, विच इज इक्वल टू 80 रुपीज। 1 kg इट मीन्स 1000 का कॉस्ट अगर 100 है, सो 800 ग्राम का 80 रुपीज हुआ। इट मीन्स उसने 80 रुपीज लगाए थे और 100 रुपीज चार्ज किए। प्रॉफिट वैल्यू इज 20 out of 80, and this is 1/4, so your answer for this one is 25%. For this question again same deal करना है। With respect to 1 kg, if your cost is 100 rupees, 6% का लॉस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इट मीन्स कस्टमर से वो 94 रुपीज चार्ज करेगा। अनुज, यस एंड नो? यस सर। एंड 900 ग्राम सेल किया, इट मीन्स उसका कॉस्ट तो सिर्फ 90 रुपीज लगा। एंड 90 रुपीज लगाकर 94 चार्ज किया, इट मीन्स 4 रुपी एज ए प्रॉफिट आउट ऑफ दिस 90 रुपी जो उसने एक्चुअली अप्लाई किया है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। सो 4 out of 90 to get percent value multiply by 100 which is equal to 4.44%. अब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करने की नीड नहीं है। इफ यू नो 1/9 इज 11.11, so you know 4/9 obviously 4 times of this which is 44.44%, but ये 4/90 है, so point shift हो गया which is 4.44. Now clear everyone? Ashvi, Saloni? Yes. Yes, sir. Yes, sir. As it is same language है, so expected है कि आप सबका करेक्ट होना चाहिए।
Yes, very good. Rest students, your answers. The correct one is 60. Ashwi, Manjeet, Saloni, any problem to solve this? एक बार एक्सप्लेन करो सर ये वाला आंसर। Beta, again, with same way, if your 1 kg cost is 100 rupees, according to statement given, shopkeeper sell his goods at a profit of 20%. It means अभी तो वो डायरेक्टली कह रहा है कि मैं आपसे 20% चार्ज कर रहा हूँ. इट मीन्स आउट ऑफ दिस 100 रुपीज मेरे को 120 आपसे चाहिए. बट उसने एक तो प्रॉफिट यहां से डायरेक्टली कमाया और दूसरा उसने जो चोरी की उसने 25% का वेट कम इस्तेमाल किया. इट मीन्स 75% वेट केवल इस्तेमाल कर रहा है. सो एक्चुअल कॉस्ट तो उसको केवल 75 लग रही है बट कस्टमर से चार्ज कर रहा है 120. इट मीन्स 45 रुपीज वो टोटल अर्न कर रहा है आउट ऑफ दिस 75. To get percent value, multiply by 100, and actually this is 3 by 5. So you know 1 by 5 is 20, so 3 by 5 is 60. Otherwise 300 में आप 5 से divide करते हैं, then again get your answer is 60. Now clear? यस सर, मैंने वो 25 को 15 Yes, देख sir. लिया, देखिए। Yes. Again same pattern का question है. So do it carefully. Shopkeeper sells goods at a profit of 10%. It means 10% तो वो डायरेक्टली चार्ज कर रहा है. It means out of 100 रुपीज उसने सीधा सीधा बोला मेरे को 110 चाहिए. बट इस बार कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंट वे में गिवन है. He uses weight of 16 gram instead of each 20 gram. Do it fast. आज की क्लास में मिस्टर राठी बेस्ट परफॉर्मर है. वेरी गुड बेटा. सर यस बेटा. नहीं, आंसर आ गया, चैट बॉक्स में लिख देते हैं। सो 37.5 या कुछ डिफरेंट? 37.5। ओके. मंजीत, यस सर। अगेन देखिए 1 kg cost is suppose 100 rupees. So directly 110 तो
क्वेश्चन में गिवन है, बट अभी कंपैरिजन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू 20 ग्राम, उसने केवल 16 ग्राम सेल किया। इट मीन्स इसको मैं प्राइस के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूं तो हम कह सकते हैं 20 रुपीज के रिस्पेक्ट में उसने सिर्फ 16 रुपीज के वैल्यू को सेल किया। बट कंपैरिजन 100 से है, सो ऑब्वियसली 100 के रिस्पेक्ट में वो सिर्फ 80 रुपीज का माल सेल करेगा। इट मीन्स इन दिस पोजिशन योर कॉस्ट प्राइस विद रिस्पेक्ट टू दिस 100 इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज 80 और चार्ज किया है 110। इट मीन्स 30 का प्रॉफिट एंड 30/80 to get percent out of 100. So actually this is 3/8. And if you know 1/8 is 12.5. So 3/8, just 3 times of 12.5, it means 37.5%. Yes, Ashvi, Saloni, clear now? Yes, sir. और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अपन 100 को ही कंसीडर करेंगे तभी अपना रिजल्ट आएगा। जैसा कि इस बार डेटा आपको 20 ग्राम से कंपेयर करके दिया है, तो आप इस तरह से अगर कंसीडर करते हैं लाइक 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज, सो ऑब्वियसली 20 ग्राम्स का कॉस्ट 20 रुपीज एंड 16 ग्राम का कॉस्ट 16 रुपीज। सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि 20 ग्राम्स के रिस्पेक्ट में उसने सिर्फ 16 ग्राम सेल किया। इट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट तो 20 रुपीज बन रही है और उसके एवज में उसने सिर्फ 16 रुपीज की वैल्यू इस्तेमाल करी, बट चार्ज किया है 10% प्रॉफिट। अब कस्टमर को तो नहीं बताएगा ना मैंने चोरी करी है, तो वो तो 20 के रिस्पेक्ट में चार्ज कर रहा है 20%, सॉरी 10%, इट मीन्स 2 रुपीज। तो योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 22 एंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज 16। सो 6 रुपी प्रॉफिट आउट ऑफ 16 to get percent out of 100। अगेन देखिए डेटा वही कंसीडर हो रहा है 3/8, यहाँ पर भी 3/8 था। इट मीन्स योर आंसर रिमेन सेम 37.5%। किसी भी तरह से आप काउंट करेंगे रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये उतना ही बेसिक क्वेश्चन है जैसे अपन इनिशियल स्टेज पर कर रहे थे। रीड द लैंग्वेज केयरफुली। इसके जस्ट बाद कोई क्लास है आपका? नहीं सर, आज तो नहीं है। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट। राठी जी बेटा, मैंने अभी अभी आपका तारीफ किया था। मैंने तारीफ किया और आपने मामला गड़बड़ कर दिया। Yes, it is 57. Yes. So, guys, any problem to solve this? Simple question है बिल्कुल। सलोनी, सर पता नहीं लैंग्वेज, हर क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में। Yes, sir. 57. बेटा लैंग्वेज ही तो मेन खेल है क्वेश्चंस में। आपको हर बार लैंग्वेज को ही तो डिकोड करना है। अगर आपने वो ठीक डिकोड कर लिया तो आपसे इजीली आंसर आता है। लाइक इन दिस क्वेश्चन देखिए आपने क्या बोला, एप्पल्स आर बॉट एट 7
फॉर 3 रुपीज। ऑब्वियसली ये 7 क्वांटिटी को और 3 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स 7 एप्पल कॉस्ट इज 3 रुपी। अभी क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट पर 100 must they be sold to gain 33%? It means 100 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड है इंक्लूडिंग 33% प्रॉफिट। तो पहले कॉस्ट प्राइस पर आ जाए। ऑब्वियसली 1 एप्पल का कॉस्ट हो गया 3/7, बट 100 एप्पल का कॉस्ट हो गया 300/7, बट दिस इज ओनली कॉस्ट प्राइस। आपको चाहिए इंक्लूडिंग 33% सेलिंग प्राइस, है ना, इंक्लूडिंग 33% प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड है। सो ऑब्वियसली ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस का अपने आप में 100% है। इंक्लूडिंग 33% प्रॉफिट, योर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 133%। सो इट इज 19 and 19 threes are 57 rupees। सिंपल यूनिटरी बेस्ड क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड के ऊपर इजीली सॉल्व हो रहा था। नाउ क्लियर एवरीवन? यस सर। अनुज, क्लियर नाउ? यस सर। हाँ। अभी सेम पैटर्न का तो क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है। क्या मैन बॉट सम नंबर ऑफ आर्टिकल at the rate of 2 article for 1 rupee and same number of article at the rate of 3 article for 1 rupee to gain 20%, in how many rupees he should sell a dozen? जो इससे पहले आप वेट करिए, जरा कुछ क्वेश्चंस और करिए। लाइक योर क्वेश्चन इज, सपोज आपने 1 रुपीज के 2 आर्टिकल्स इस रेट से परचेज किए। Some articles purchased at the rate of 1 article for 2 article for 1 rupee and sold all the articles at the rate 5 article for 3 rupees। ये मतलब ये भाव दिया है, ठीक है, रेट दिया है। 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपी एंड 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 3 रुपीज। इस रेट से परचेज किया, इस रेट से सेल किया एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट? Yes, guys. Okay, so one answer is 20%, another one is Ash, we also got 20. Next question is, इस रेट से परचेज किया और इस रेट से सेल किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट? So, Anuj, any problem to solve first one? And Saloni? यस सर, थोड़ा सा एक बार समझा देना। नहीं सर, थोड़ा बेटा देखिए, एक्चुअली ये रेट दिया है आपको, भाव दिया है, इसमें
वैल्यू नहीं दी उसने एग्जैक्टली कोई 2 आर्टिकल और 5 आर्टिकल नहीं बोला इस रेट से। जैसा कि जनरली आप शॉप पर जाते हैं तो वो कह रहा है कि सपोज मैं 2 आर्टिकल 1 रुपए के सेल कर रहा हूँ, या आप सेल कर रहे हैं तो 5 आर्टिकल आप 3 रुपीज के सेल कर रहे हैं। सो जब आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, दैट पोजीशन क्वांटिटी मस्ट बी सेम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल का और सेलिंग प्राइस 5 आर्टिकल का डायरेक्ट कंपेयर कर लूं जब तक क्वांटिटी सेम नहीं है। सो या तो आप इजीली यहाँ पर 1 आर्टिकल के रिस्पेक्ट में दोनों में बात कर लें। सो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपी है, इट मीन्स 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपका 50 पैसा हो गया। एंड 5 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 3 रुपीज है, इट मीन्स 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 60 पैसा हो गया। यस और नो? यस सर। इट मीन्स 10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 50 पैसे पर। एंड 1/5 इट मीन्स 20% प्रॉफिट। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ। सो देखिए, ये कंसेप्ट आप तब इजीली अप्लाई कर सकते हैं जबकि आपके पास फॉर 1 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वैल्यू इजीली मिल रहा है। अब कई बार ये डेटा क्रिटिकल होगा, सो 1 आर्टिकल के लिए आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज मिलेंगी। इन दैट पोजीशन आप कैसे डील करेंगे वो समझते हैं। तो ये तो मैंने क्योंकि बहुत सिंपल डेटा लिया था तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाए। अदरवाइज इन जनरल वे जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे या डिफरेंट डेटा होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव डेटा होगा, तब कैसे डील करेंगे। सो आप आर्टिकल्स को सेम कर दें। यहाँ पर 2 आर्टिकल्स के रेस्पेक्ट में बात है, यहाँ पर 5 के रेस्पेक्ट में बात है। आप दोनों को छोड़ दीजिए और 10 की बात करिए। 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 बोथ। सो इसके रिस्पेक्ट में आप परचेज एंड सेल दोनों निकालेंगे। सो जब परचेज कर रहे हैं सिर्फ 2 आर्टिकल्स 1 रुपीज के हैं, इट मीन्स 10 आर्टिकल का परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपीज हो गया। एंड 5 आर्टिकल सेल करने पर 3 रुपीज, इट मीन्स डेफिनेटली 10 आर्टिकल सेल करने पर आपको 6 रुपीज मिल रहे हैं। तो क्लियरली विजिबल है कि 5 रुपीज लगाकर आप 6 रुपीज अर्न कर रहे हैं। इट मीन्स 1 रुपी प्रॉफिट आउट ऑफ 5। सो अगेन इट इज 20%। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। नाउ इन द सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 6 आर्टिकल की बात करी एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4 आर्टिकल की बात करी एट द टाइम ऑफ सेल। तो आप दोनों को सेम करेंगे, क्वांटिटी मस्ट बी सेम। सो योर 12 आर्टिकल, दोनों का मल्टीपल वैल्यू 12 है और एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज 12। इस पर आपको परचेज एंड सेल दोनों काउंट करना है। सो सिंपली देखिए, आर्टिकल्स 2 टाइम्स हो रहे हैं, सो प्राइस भी 2 टाइम्स हो गया, दिस इज 10। एंड आर्टिकल्स 3 टाइम्स हो रहे हैं, इट मीन्स प्राइस भी 3 टाइम्स हो गया, दिस इज 9। So for 12 article, your cost price value is 10 and selling price value is 9. So obviously 1 rupee loss at this 10 rupees. So 1 out of 10, so obviously 10% loss हो रहा है। Clear everyone? यस सर। यस सर। Yes, Saloni got it. अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। फिलहाल आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। Yes, try to solve this fast. इसमें जो बेसिक्स यूज हो रहे थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। Man bought some number of article at the rate of 2 article for 1 rupee. It means ये रेट गिवन है आपको। एंड सेम नंबर, इट मीन्स क्वांटिटी मस्ट बी सेम इन बोथ सिचुएशन। जब फर्स्ट केस में परचेज किया और सेकेंड केस में परचेज किया, आपका क्वांटिटी सेम होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर 1 रुपी। 20% के गेन के लिए 1 डजन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? यस गाइस,
Any problem to solve this? चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। एक्चुअली दोनों केस में आपको रेट गिवन है। इन फर्स्ट सिचुएशन in 1 rupee 2 article, in next situation in 1 rupee 3 articles, but according to language same number of article in both situation. So फिलहाल तो बेटा ये सेम नहीं है, तो इन्हें सेम करेंगे इट मीन्स आप 6 आर्टिकल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे बिकॉज 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3 both. So through this data 2 to 6 it means मैंने quantity 3 times किया, your price also becomes 3 times, and quantity 2 times किया, so price also becomes 2 times. It means clearly your 12 article total cost price is 5 rupees. Yes or no? यस सर। यस सर। So अभी अपने पास कॉस्ट प्राइस आया है, बट क्वेश्चन कहता है फॉर 1 डजन इट मीन्स ऑब्वियसली 12 आर्टिकल के लिए सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड है, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग 20% प्रॉफिट, एंड यू नो 20% ऑफ 5 रुपीज इट मीन्स 1 रुपी ये प्रॉफिट चाहिए. इट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज 6 रुपीज फॉर 1 डजन. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। Now anyone having any doubt in this complete session from starting to end? नो सर। So everything is fine? यस सर। यस सर। सो अनुज बेटा थोड़ा सा वर्क आप एटलीस्ट उस फ्रैक्शन वाले पार्ट पर जरूर करिएगा, का फर्स्ट क्लास है इसलिए. लाइक 1/3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 33.33%, कहीं 1/7 की नीड आई, सो दिस इज 14.28%. तो एटलीस्ट अगर ये डेटा आपके माइंड में है तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा रिड्यूस करने के लिए इसका फ्रैक्शन यूज करना पड़ता है. तो जब तक ये रिलेशन आपको नहीं क्लियर है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम 1/2 टू 1/11 12 तक, एटलीस्ट वो बेसिक डेटा आपके माइंड में होना चाहिए. ओके यस सर। ओके गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू एवरीवन, गुड डे. सर 2 यस मिनट आपसे बात करनी थी। बोलिए बेटा. सर अभी जैसे ये थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेक्शन हुआ है तो पर वो थोड़ा कॉन्सेप्ट्स मतलब शुरू से थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब जैसे बेसिक्स थोड़ा दिक्कत है। तो अभी वो अरुण शर्मा सर का लेक्चर देखने के बाद फिर एक बार ये लेक्चर देखूंगा तो आई थिंक से हो जाना चाहिए, राइट? थोड़ा कॉन्सेप्ट बेटा अगर मैं बहुत ज्यादा डीप के बेसिक की बात करूं तो बेसिक्स में आपको अदर कोई भी लेक्चर देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट परसेंटेज से रिलेटेड, हाँ सेशन आप उसका बेसिक देख लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सिंपल कंपाउंड हुआ, या रेस्ट जो भी चैप्टर्स हैं इन अर्थमेटिक सेक्शन, ये बेस्ड है बेटा परसेंटेज एंड रेशियो के ऊपर, एंड स्पेशली फॉर परसेंटेज, है ना. सो परसेंटेज एंड रेशियो का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं यूज हो रहा है. जैसे कि 1/3 अपन ने यूज किया कि लाइक 1/3 प्रॉफिट हुआ ऑन सेलिंग प्राइस. एट दिस पोजिशन योर 3 रुपीज इज सेलिंग प्राइस एंड 1 रुपीज प्रॉफिट. इन जनरल अगर 1/3 का प्रॉफिट बोला सो 3 रुपीज कॉस्ट प्राइस एंड 1 रुपी प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर होता है. बट लैंग्वेज में अगर सेलिंग प्राइस पर बोला सो जो बेस वैल्यू है ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस की तरह ट्रीट हो रही है. तो थोड़ा कॉम्बिनेशन चाहिए परसेंटेज एंड रेशियो का. तो मैं कहूंगा परसेंटेज एंड रेशियो के सेशंस अगर आप देख लेंगे तो डेफिनेटली 100% कंफर्टेबल होंगे. ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, गुड डे एवरीवन. थैंक यू सर, थैंक हैव अ यू नाइस सर। डे।